حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا. عمر کا پچھلا حصہ ہے, اولاد نہیں ہے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. خیر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی, اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اللہ اکبر, اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے, یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا, خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا. نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے, اچھے خواب. لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں, شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں. لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا. نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے. اللہ اکبر, نبی تو نبی رہا. نبی کے سچے غلام جو ہیں, شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خیر, تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو آئے اور بیٹے سے کہا, پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو, ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں, اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے. رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا تھا. تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے, دوست کا بلاوا ہے, میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے. تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں, کنگھی بھی کرتی ہیں, بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں, خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا. اللہ اکبر. اب 13 سال کی عمر, فلما بلغ معہ السعی, جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے. اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے, تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی, کیا منظر ہوگا. خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم, ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا, کہا ہٹ جا, میرے پاس ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی ہوتے, قربان کر دے. یہ وہی جگہ ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا, انہوں نے بھی یہی بات کہی, کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا, کہا کہ شہزادہ کدھر ہے. کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے. کہا نہیں, دوست کی دعوت نہیں ہے, وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کوئی سوچ کے بات کر, دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا. دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو, تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں, جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں. کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل, پھر مانگ مانگ کے لیا, مجبور ہو گیا, کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا, اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ امر واقعیہ ہے, یہ ہونے والی داستان ہے.
जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहिम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना की उस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी जमाल करता है तो वो कहता मुझे फोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। वो कहता थकन से चूर हूं। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाया नहीं जाता और शरीयत ने तुझे सहूलत भी दे दी, कोई जरूरी नहीं है कि तू वहां जाए। लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा ना हो पाती। लेकिन यहां एक अनोखा वाकया अमलन रूपजीर हुआ। फलम्मा बलगा माहु साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे। अल्लाह, कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था। ए मेरे बेटे, या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। उसमें अपनाइयत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप न बताता ज़बह कर लेता, लेकिन नहीं, बेटे को शामिल किया। बताना, मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूए सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहां कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, यह भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यह भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है, आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो यह भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर यह भी नहीं देखा होगा। बेटे ने यह नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने यह नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा हो तो कहे बाप हो, सफ़ाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबाते, ए मेरे अब्बू। जरा इससे शहर टपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबाते, ए मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबाते फ़अल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबाते ज़बह नहीं कहा है, अब्बू ज़बह कर दीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में दिया जाता है ना, लेकिन बेटा 2 कदम आगे बढ़ गया। या अबा फ़अल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पू ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी नहीं, सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकया है। चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी झुक झुक के देख रहे थे। मालिक क़यामत आने वाली है, कहा तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम कहते थे इंसान को खलीफा बना रहे, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, धींगा मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अदा को, मेरे बंदे की अताअत और फरमा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर, बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है
अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकारी की है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए कि फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें, फलां कोठी और फलां बंगला खरीद लें, नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। इस्लाम इसे कहते हैं फलम्मा अस्लमा। यहां लफ्ज जब दोनों ने रिजा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन निहादन, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दनें रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप ज़बह करने पे तैयार हो गया और बेटा ज़बह होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का ज़बह के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को ज़बह करना ये उससे भी बड़ी बात थी। ये तमाशाए लबे बाम नहीं था। लेकिन आज जमाना इस मंजर को देख रहा है। मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर मुफस्सिरीन ने दो बातें की हैं। लिलजबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया, पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे। और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगें तन जाएं और गर्दन खुल जाए ताकि ज़बह करने में आसानी हो। तो कहा कि गर्दन को जो है वो कुशादा करने के लिए आपका नाजुक गला घुमा करके पेशानी पहाड़ पत्थर के साथ लगाई और रगें तन गई। पूरा बदन जकड़ा था रस्सियों से। और हजरत इब्राहिम ने खुद भी पट्टी बांधी थी कि ये मंजर इतना आसान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान मेरी रस्सियां खोल दो। बेटा क्या हुआ? कहा खोल दो रस्सियां। बेटा अभी तो कह रहे थे या बतिफल मा तो मत, जो करना है कीजिए, अब क्या बोल रहे हो? कहा कल का मुअर्रिख लिखेगा बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था। बाप ने बांध के किया है, खोल दो रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खोल दी गई। हजरत इब्राहिम ने हाथ में छुरी पकड़ी है लेकिन पट्टी बराबर बंधी है। बेटे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। अल्लाह अकबर। तो पूरी कुव्वत के साथ छुरी को नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखा। इब्राहिम तेरे हौसले पे कुर्बान, इस्माइल तेरी फरमा बरदारी पे कुर्बान। इकबाल बोले ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। बेटा लेटा है, रस्सियां भी खुली हैं, तड़पता भी नहीं है, आहो फगा भी नहीं करता, आंखों में आंसू भी नहीं है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी है, बेटे की नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत से छुरी को दबा दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक बाल भी नहीं कटा। छुरी को पास पड़े पत्थर पे मारा, लकड़ी पड़ी थी, पत्थर पड़ा था, मारा, वो कट गया। लेमा तकता या सिक्कीन है, छुरी तो क्यों नहीं काटती? अल्लाह अकबर। छुरी ने जुबान हाल से आवाज दी इब्राहिम अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो यनहानी। खलील मुझे एक बार काटने का कहता है, वो खलील, वो कबीर, वो रब, वो जलील 70 बार कहता है, खबरदार एक बाल भी काटा। कहा तेरा काम तो काटना था। छुरी बोली आग का काम भी तो जलाना था। जिसने आग को जलाने से रोका आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। समझे, इससे यह भी तो नतीजा निकल सकता है चलो जान छूटी, मेरा कसूर तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा था। पता नहीं दिल में क्या बात आ गई कि छुरी को रोक दिया गया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा और छुरी तेज की और गर्दन पे रख के पूरा जोर लगा दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा। खुश हो गए कि बड़ा काम था कर गुजरा। जल्दी जल्दी पट्टी खोली तो देखा ज़बह होने वाला बेटा नहीं दुम्बा था। अल्लाह अकबर। दुम्बा पड़ा था और बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा था। तो हजरत खलील की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास जिब्रील खड़े थे, कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आवाज आई फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। आवाज आई इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। तूने तो अपने गुमान में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, लेकिन ये हमने उस वक्फे में दुम्बा रख दिया। तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने इनके जो है बदले में एक
दुम्बा दे दिया और हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत रख दिया। आज मना की वादी में हाजी वहां जाके दुम्बे की गर्दन पे छुरी फेर रहा होता है। वो यादगार आज उस मज़बा पे, आज उस मनसब पे जहां बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत खलील छुरी हाथ में लिए खड़े थे, आज 40 लाख जानवर कुर्बान हो रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर कुर्बानियां हो रही हैं। अल्लाह अकबर, वहां आवाज आती है, सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम।